Hello friends, welcome back to my channel. So today is the review time. I'm sharing you a review of my washing machine. It's a Whirlpool top load washing machine. As you can see, it has a 6 sense smart sensor, zero pressure fill technology and power dry technology. It also has a built-in heater. It's a 7.5 kg washing machine with 360-degree bloom wash. Bloom wash means it completely rotates all the clothes which is inside your machine, and it washes and dries each and every cloth. Let me show you some thing in over here. So over here I had switched on the main power. There comes the power. As we switch on the power, it shows P1. P1 is for daily wear clothes. Then if you want P1, we just need to start, and then it just rotates. It takes the what do we say? It takes the weight of the clothes, and then accordingly it decides how much how much soap you will require, how much detergent powder you will require. You can use detergent powder as well as liquid, whatever you wish you can use, but I would suggest take any one thing. If you are taking a powder, just start with powder. If you are taking a liquid, just start with liquid. Okay, so now here P2 is for heavy. Heavy is jeans, like jeans, towels. If you want that, you can do P2. Then comes delicate, P3. Then comes white cloth, that is P4. Then comes P5 is stain wash. If you have any stain in your clothes, you can use P5. Then anti-detergent is P6, P7. P6 is for kids clothes, like if you feel like okay नहीं मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा खराब हो गए, so you can take P6. Then P7 is for bed sheets, P8 also. Then P9 is eco. I never use P9. Then rinse and dry, only dry, like that. There are many options. So water level it takes according to whatever clothes you have put inside, whatever weight your cloth is having. Okay, I personally like this because as it is having a built-in heater. Otherwise there are no heater inside. See, it is having a stainless steel body also. If we take a front load, then only we used to get a heater, and that also for top load. If we keep our washing machine in washroom, then only we can use it. But my washing machine is in kitchen, then also I can use it because it is having a built-in heater. I'll load the clothes. Let's see. I usually use it in daily, so it directly tells me. It don't keep on टेकिंग दैट सेंसर पार्ट कि ओके कितना मुझे लिक्विड डालना पड़ेगा, बिकॉज यूजुअली आई वॉश रेगुलर कपड़े होते हैं, नाइट ड्रेस, टॉवल, वैसे तो मैं डेली वॉश में ही डाल देती हूँ. एवरी टाइम आई डोंट सिलेक्ट टॉवल है तो ओके हैवी में डालना पड़ेगा एंड ऑल, बिकॉज इट टेक्स क्वाइट अ लॉन्ग आवर्स इफ़ वी सिलेक्ट वाइट्स और हैवी. 2-2 ढाई घंटे के आवर्स चलता है ये. आई नो समवन वुड से दैट सी, इसमें मैंने आपको दिखाया भी है कि मैं कंफर्ट भी इसी में डायरेक्टली डाल देती हूँ, या तो उसमें ड्रॉवर है उसमें भी डाल सकते हैं. एंड आई यूज़ सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड. उसमें टॉप लोड भी आता है एंड फ्रंट लोड भी आता है. सी नाउ ओवर हियर इट टेक्स 2 hours 21 minutes. ओके, इट एंड सी अभी आप देखिए इसमें पानी चालू हो गया है. We don't need to keep on taking every time. See, these are the soaps and everything I used to use. मैं इसमें एक्सप्रेस मोड भी है. इफ़ यू वांट टू गो आउट तो आप वो एक्सप्रेस मोड चालू कर दो, आपका उसमें आधा टाइम कम हो जाता है. बट मैं वो भी नहीं करती हूँ बिकॉज हम घर पे ही रहते, तो हम अच्छे कपड़े क्यों ना धुल के पहने. सी हाँ, सब लोग बोलेंगे इतना 2.5 घंटे मशीन में डालने से तो अच्छा है we can wash our clothes by our hands, but as I have a back problem I can never wash the clothes by hands, and मुझे मेड के कपड़े भी नहीं पसंद है, तो मैं मशीन में ही प्रेफर करती हूँ और अच्छे से
और ज़्यादातर मतलब अगर डेली वाला हुआ तो ठीक है, बट नैपकिन्स या वो कुछ हुआ तो आई पुट इट इन अ स्टेन वॉश और एंटी वॉश। मैं 15 दिन में 1-2 बार मैं एंटी बैक्टीरिया भी ऑन कर लेती हूँ, P6 वाला। तो उसमें एकदम गर्म पानी आता है और अच्छे से मेरे कपड़े इतने अच्छे से धुल जाते हैं। सो आई लव दैट। अब देखिए इसमें, और इसमें 4 बार पानी फिल होता है, मतलब वॉश सोक वो प्रोसेस होता है, फिर पानी निकलता है, फिर अगेन पानी नया आता है, मतलब पानी गंदा पानी भी निकलता रहता है और 4 बार हमें एक्स्ट्रा पानी मिलता है। ठीक है, पानी का वेस्टेज जो बोलो, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज बोलो, बट आई लाइक गुड क्लोथ्स टू वेयर। मुझे मेड्स के कपड़े ज़रा भी नहीं पसंद है और मैं हाथ से धो नहीं सकती हूँ। तो मेरे लिए तो ये भाई भगवान की ऐसे देन है कि वाओ, गर्म पानी में अच्छे से कपड़े मेरे धुल जाते हैं। आई एम लिटरली सेटिस्फाइड विद दिस। और इसमें पावर ड्राई भी है, पर मैं पावर ड्राई रेनी सीज़न होता है तो ही मैं चालू करती हूँ, अदरवाइज़ मैं पावर ड्राई भी नहीं करती, क्योंकि पावर ड्राई एक्स्ट्रा 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लेता है। तो ठीक है, रेनी सीज़न आया तो कभी कभार करना पड़े तो वो पावर ड्राई हम ऑन कर लेते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल जो उसका साइकिल रहता है मैं उसी में करती हूँ। बिकॉज ऑलरेडी अगर मैं स्टेन वॉश या बैक्टीरिया वॉश में डालूँ तो वो 2.5 घंटा लेता है, ऊपर से मैं पावर ड्राई करूँ तो वो 3 घंटा। और ठीक है ना, बालकनी में सुखा दो, कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और नेचुरल धूप में सूखे वो बेटर है, मशीन में इतना वो करने से तो अच्छा है ना। इसके लिए मैं नॉर्मल जो मशीन का साइकिल है उसी में मैं कर लेती हूँ। एंड आई एम लिटरली सेटिस्फाइड विद दिस वॉशिंग मशीन वर्लपूल का। मैं पहले हम नेशनल का यूज़ करते थे, उसके बाद वो बिगड़ गया, काफ़ी साल वो यूज़ किया, 30 ईयर्स आई थिंक, अप्रॉक्स 30-31 ईयर्स वो यूज़ किया। मेरी मदर इन लॉ ने भी यूज़ किया और फिर मैंने यूज़ किया, बट फिर वो रिसेंटली बार बार बिगड़ रहा था। ये देखिए अभी पानी निकल रहा है अंदर से, तो मतलब वो 4 बार नया पानी लेता भी है और गंदा पानी निकलता भी है। ये देखिए अभी 43 मिनट्स बाकी है, अभी रिंस हो रहा है, वो अपने आप ही होता रहता है। और ज़रा भी आवाज़ें, किचन में मशीन चलता है, हम अगर लिविंग रूम में बैठे तो हमें पता भी ना चले कि भाई मशीन चल रहा है। ज़रा एकदम साउंड प्रूफ है ये वॉशिंग मशीन, वेरी वेरी नाइस। इसमें 9.5 kg का भी है, 6.5 kg का भी है, बट मेरे किचन की जो स्पेस थी उसमें यही मशीन आता, तो इसके लिए मैं 7.5 लिया मैंने। अदरवाइज़ आई वुड हैव प्रेफर्ड 9.5 kg कि कभी गेस्ट वेस्ट भी आ गए, मतलब ज़्यादा कपड़े डालने हो तो वो अच्छा रहता है। ऐसे अभी ये कैसा हो जाता है कि 2 दिन में एक बार डालना, अगर बड़ा सा ले लिया ठीक है, 3-4 दिन में एक बार डाल दो, लॉट जमा करो, क्योंकि ये 2.5 आई नो एवरीवन विल से कि भाई इतना इलेक्ट्रिसिटी जाता है, तो क्या ऐसे लगता है कि भाई बड़ा सा ले लिया 9.5 किलो का और एक साथ फिर 4 दिन का एक साथ कपड़े डाल दिए, तो धुलते तो अच्छे ही है कपड़े। तो मतलब जैसे जिसकी पोजीशन और जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वैसे ले सकते हो। और उसका ऊपर का ग्लास भी जो है वो भी टफन ग्लास है, तो वो भी एकदम हैवी है और ऊपर से हमें दिख भी सकता है, ट्रांसपेरेंट है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये। अब देखिए उसका अभी ये रिंस हो रहा है तो इसमें भी थोड़ा सा पानी लिया और फिर ये अभी पूरा पानी निकाल रहा है, रिंस पार्ट ही चल रहा है ये, आप देख सकते हैं। देखिए अभी 39 मिनट्स बाकी है। तो आई एम लिटरली सेटिस्फाइड विथ इट। वाटर लेवल भी आप इसमें हार्ड और वो भी है, तो अब अभी हमारे वहाँ इतना हार्ड वाटर नहीं है, तो मुझे वो चीज़ ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आपके वहाँ हार्ड वाटर आ रहा है तो आप वाटर लेवल का बटन भी ऑन कर सकते हो। इसमें मैंने स्टार्टिंग में दिखाई, ये देखिए हार्ड वॉश वाटर, तो आप वो भी क्लिक कर सकते हो। तो उसमें क्या आपका हार्ड वाटर का प्रॉब्लम भी उसमें सॉल्व हो जाएगा, जिसके वहाँ हार्ड वाटर आता है वो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। अभी मेरे वहाँ हार्ड वाटर नहीं है तो मुझे वो चीज़ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट हैज़ ईच एंड एवरी थिंग
मतलब सब चीज़ देख के हमें लगता है उन्होंने बनाया है कि काफ़ी जगह पे हार्ड वाटर आता ही रहता है। तो दिस इज़ द बेस्ट आई फील, बिकॉज़ हर जगह मुझे फ्रंट लोड का क्या है कि ओके और एक कपड़े एक दो रह गए तो फिर ऐसे लगता है अरे रे ये रह गया, अभी फ्रंट लोड है तो हम ओपन तो नहीं कर सकते, टॉप लोड है तो थोड़ा सा पॉज करके भी हम डाल सकते हैं कि अरे ये रह गया तो चलो ये डाल देंगे। बट यूजुअली नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन बिटवीन बार बार वो ऑन ऑफ आई मीन पॉज स्टार्ट करने से उसका सेंसर और वो सब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट कभी कभार ठीक है, चल जाता है, हम लेडीज़ जुगाड़ू होती है तो वो सब हमारा चलता ही रहता है। तो इसके लिए मुझे टॉप लोड ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई जस्ट वेंट फॉर दिस टॉप लोड ओनली। ये देखिए अभी वापस पानी डाल के रिंस हो रहा है अंदर ही अंदर, एकदम अच्छे से घूमता है ये। कपड़े पूरे नीचे से ऊपर लेता है, ऊपर से नीचे कपड़े जाते रहते हैं, मतलब इट लिटरली वॉश लाइक दैट। पूरा 360 डिग्री उन्होंने जो लिखा है वो वैसे हो ही रहा है। अगर आप कपड़े डालोगे और फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपका वो ऊपर का जो कपड़ा होएगा वो आपको ऊपर नहीं दिखेगा, वो कपड़ा पता नहीं नीचे चला गया होगा और दूसरा कोई कपड़ा ऊपर आ गया होगा। मतलब 360 डिग्री वो रोटेट होता ही है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ऐसे लगता है कि ये हाफ सर्कल हो रहा है, बट नहीं, वो नीचे से पूरा ऊपर लेता रहता है। वो पानी का फोर्स ऐसे वो लोग किया है कि वो नीचे से ऊपर आता है, ऊपर वाले कपड़े नीचे जाते हैं, घूमता ही रहता है। अब ये देखिए वापस पानी आ रहा है, मतलब काफ़ी टाइम पानी, 4 टाइम्स तो पानी लेता ही है। और डेली का जो होता है, अभी ये तो आज मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने स्पेशली स्टेन वॉश और वो ऑन किया था, बट अदरवाइज़ मैं यूजुअली डेली में डालती हूँ तो वो 1.25 घंटा लेता है, वो 1.25 घंटे में हो जाता है। 2.5 घंटा था, 2 hours 21 minutes ऐसे था। वो स्टेन वॉश है, फिर अपना ये बैक्टीरिया वाला एंटी बैक्टीरिया है, P6 P5 P6 वाइट्स, वो सब ज़्यादा लेता है। बेडशीट भी इतना नहीं लेते। अगर आपको मतलब एक दिन खाली बेडशीट डालने हैं, 3-4 बेडशीट जमा कर लो और उसमें डाल दो बेडशीट वाले, उसमें बेडशीट भी वो 1-1.25 घंटा ही लेता है, ज़्यादा नहीं लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है, बट काफ़ी अच्छी धुल जाती है। और इसमें क्या है, मतलब एक चीज़ है कि उन्होंने 2 कंपार्टमेंट नहीं दिए कि एक बार डिटर्जेंट डालो और फिर जब भी ड्राई होगा उसके पहले, ड्रिंस एंड ड्राई होगा उसके पहले हम कंफर्ट डालें। तो मैं बार बार तो खोल नहीं सकते हम लोग, तो मैं स्टार्टिंग में डिटर्जेंट एंड कंफर्ट दोनों साथ में ही डालती हूँ। प्लस मैं इसमें वैनिश भी डालती हूँ, कभी कभी मैं वाइट जब भी कपड़े करती हूँ तो मैं नील भी डालती हूँ, वो जो नील आता है ब्लू कलर का सफ़ेद कपड़ों में डालने के लिए, मैं वो भी डालती हूँ, तो कपड़े क्या अच्छे हो जाते। तो ऐसा नहीं है कि इसमें वो सब नहीं डाल सकते। हाँ, बट अगर आप लिक्विड यूज़ कर रहे हो तो फिर लिक्विड ही यूज़ करो डिटर्जेंट के लिए। पाउडर यूज़ कर रहे हो तो पहले से पाउडर ही यूज़ करो, और पाउडर अगर कर रहे हो तो वो आप ऊपर डालो कंपार्टमेंट खोल के। लिक्विड तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, ऊपर भी कंपार्टमेंट खोल के भी डाल सकते हो, कैसे भी डाल सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। और मैं कंफर्ट स्टार्टिंग में ही फिर डाल देती हूँ, बट एंड तक कपड़े में स्मेल आती है। 4 बार पानी निकलता है और नया आता है, फिर भी आपके कपड़ों में कंफर्ट की स्मेल आएगी ही आएगी। आई एम लिटरली सेटिस्फाइड। एंड अगर आप लोग को और भी कोई क्वेरी है ये मशीन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको पक्का रीड करके आई गेट बैक टू इट। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट, अगर आपकी क्वेरीज़ है कुछ भी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना टाइम से थोड़ा बीमार थी तो मैं अभी कुकिंग के ऊपर भी वीडियोज़ नहीं डाल पा रही हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि चलो आप लोग के लिए एटलीस्ट मैं रिव्यू, ये सब प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ तो डाल ही सकती हूँ। ये देखिए ड्राई हो रहा है, अभी ड्राई हो गया पूरा, अभी 5 सेकेंड 4 3
2 एंड 1। एंड भी इतना, इसका बेल भी इतना स्लो है, मतलब ज़्यादा आवाज़ ही नहीं करता, और अपने आप अगर हम भूल गए तो अपने आप फिर वो मशीन बंद हो जाएगा। मैं तो अभी कर दे रही हूँ स्विच ऑफ। अभी बालकनी में ड्राई कर लेंगे हम, हो गया हमारा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा मशीन का डिटेल है, 3 इयर्स का वारंटी है, 10 इयर्स का भी है, अब देख लीजिए। थैंक यू।